बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम bi ihsanin ila yaumiddin. Respected participants, distinguished guests, and our honorable speaker, Mr. Ahmad Ali Siddiqui, it is my pleasure to welcome all of you to this special program titled Understanding Mutual Funds, Structures, Operations, and Sharia Compliant Practices. Let me begin by briefly introducing our organizing bodies. So, first of all, Center for Islamic Economics Studies, Markazu Dirasat al Islami. This institution is a pioneering institution dedicated to producing well qualified individuals who can effectively integrate Islamic jurisprudence with modern economic practices. Our institutions offers currently 2 years specialized programs focusing on Islamic economics, finance, and fiqh, aiming to contribute significantly to both the academic and practical spheres of this field. Additionally, this event is co-organized by IFA Consultancy, a leading advisory firm in Bangladesh, and also Adol Advisory, a leading advisory firm in Malaysia, specializing in Sharia governance, Islamic finance, and consultancy services. Both IFA Consultancy and Adol Advisory share the vision of advancing the case of Islamic economics globally and creating a positive impact in this critical sector. We are today honored to have Mr. Ahmad Ali Siddiqui, Senior Executive Vice President of Mizan Bank Limited. Mr. Ahmad Ali Siddiqui is a highly regarded figure in the Islamic banking industry, Alhamdulillah, and his expertise will provide us with valuable insights, inshallah ta'ala. Without further delay, I now invite our honorable speaker, Mr. Ahmad Ali Siddiqui, to take the floor and enlighten us with the presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Kareem. Thank you, Brother Assam Islam, and all colleagues from Adil Advisory and all the participants. And Assalamu alaikum wa rahmatullah. The session today is that I will talk about Islamic capital market and specifically the Sharia compliant mutual funds that are a very significant portion of Islamic capital market. And inshallah, what मोहतरम एक दरखास्त था आपके पास। हमारे आज के प्रोग्राम के शुरका में बहुत से मदारिस के तलबा इल्म, खास करके हमारा CIES मरकज़ दिरासत इक़्तिसाद इस्लामी का तलबा इकराम हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन हुआ है। तो अगर आपने उर्दू जबान में आपका ये प्रेजेंटेशन दिया तो हमारे लिए और हमारे तलबा इकराम के लिए ये बड़े से बड़े मुफीद होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं असल में आपके तारुफ क्योंकि आपने पूरा इंग्लिश में किया तो मैं समझा कि आज का जो पूरा सेशन है वो हमने अदरवाइज मैं सोच रहा था उर्दू में करूँगा। तो बहुत शुक्रिया मुफ्ती एहसान इस्लाम साहब, अदल एडवाइजरी की टीम और तमाम कुलीग्स और तमाम उलमा इकराम एंड पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस जो आज का हमारा सेशन है तकरीबन इसके अंदर हम इंशाल्लाह बात करेंगे इस्लामिक कैपिटल मार्केट, और इसके अंदर एक बहुत अहम हिस्सा होता है जिसको हम शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स कहते हैं या इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूं। मेरा ताल्लुक मीज़ान बैंक से है। मैं मीज़ान बैंक के शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ और इस वक्त तकरीबन 22-23 साल हो गए मुझे निजाम बैंक के साथ। मोहतरम, हमें लगता है कि आपका आवाज थोड़ा सा दूर से आ रहा है। अगर अच्छा, कोई ऐसे तरीका हो कि आपका आवाज और करीब से आएगा तो ये बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। लेट मी चेक करना।
अब ये आवाज बेहतर है? हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें तो इसके अंदर बात, इस जो सेशन है आज का हमारा, ये इस्लामिक कैपिटल मार्केट और जो शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके बारे में हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। और इंशाल्लाह अगले 1 घंटे या सवा घंटे में कोशिश करेंगे कि हम इस मौजू को समझें कि ये क्या होता है। तो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर एक तो वो हिस्सा होता है जो इस्लामिक बैंकिंग से वाबस्ता है, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो इस्लामिक बैंकिंग के अलावा जो जिसको हम कहते हैं वो होता है कैपिटल मार्केट का, यानी सरमाए का बाजार जिसको हम अगर दूसरी जुबान में कहें, कि जहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियां अपने शेयर्स या अपने सुकूक बाजार में इशू करती हैं, और फिर उन शेयर्स और सुकूक की बुनियाद पर जो सरमायाकार हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये मैं अपनी स्लाइड को दोबारा शेयर करूंगा क्योंकि वो किसी वजह से शायद स्टक हो गई थी। तो जो इस्लामिक बैंकिंग एक तो शोबा है इस्लामिक जो माशी निज़ाम का, दूसरा उसका एक अहम शोबा जो है वो इस्लामिक कैपिटल मार्केट है, यानी वो बाजार या वो मार्केट जहाँ पे इस्लामिक बैंक्स और मुख्तलिफ सरमायाकार जो शरिया कंप्लाइंट तरीके से काम करना चाहते हैं वो आते हैं। इसके अंदर जो शेयर्स का बाजार यानी स्टॉक मार्केट भी शामिल है, इसके अंदर जो सुकूक की मार्केट है वो भी शामिल होती है, और इसमें एक तीसरा बहुत अहम हिस्सा होता है इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स का, यानी एक ऐसे इदारे जो शेयर्स में और सुकूक में शरिया की उसूलों की बुनियाद पर सरमायाकारी करते हैं। तो हमें सबसे पहले जब हम इस पूरे निज़ाम को समझते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये समझना होता है कि ये इस्लामिक कैपिटल मार्केट या कैपिटल मार्केट होती क्या थी। देखिए, कैपिटल मार्केट या सरमाया हासिल करने, सरमाया इन्वेस्ट करने का बाजार एक ऐसी जगह होती है जो बैंकिंग निज़ाम के अलावा होती है, और ये अपने इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, सरमायादारों को जिनके पास सरप्लस पैसा है, कि आप अपनी ज़रूरत और अपने इन्वेस्टमेंट टारगेट के हिसाब से मुख्तलिफ तरह की सरमायाकारी करें। इसी के साथ साथ ये कंपनियों को ये मौका फराहम करती है कि वो अगर बैंकों के अलावा कहीं से सरमाया रेस करना चाहें, फाइनेंसिंग हासिल करना चाहें, तो वो इस कैपिटल मार्केट का या सरमाए के बाजार का रुख करते हैं। और उसके अंदर हुकूमतें भी हो सकती हैं और अवाम उन्नास भी हो सकती है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं, और उनके उस एक्टिविटीज के लिए अपने अपने उमूर अंजाम देने के लिए वो सरमाया हासिल करते हैं कैपिटल मार्केट से। आपने देखा होगा बांग्लादेश में अभी हुकूमत बांग्लादेश ने सुकूक इशू किया, तो ये जो सुकूक इशू हो रहा है ये दर हकीकत कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्टॉक, बांग्लादेश स्टॉक मार्केट जो स्टॉक मार्केट है, ढाका की स्टॉक मार्केट है, वहां पे अपने शेयर्स इशू करते हैं। ये भी एक ये जो शेयर इशू किए गए हैं, जो ढाका स्टॉक मार्केट है, ये बेसिकली कैपिटल मार्केट का हिस्सा है, यानी आप अपने सरमाया को रेज करने के लिए, इक्विटी को रेज करने के लिए सरमाए के बाजार में जाते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म बुनियादों पर, यानी थोड़ी देर के लिए इस मार्केट में आना चाहते हैं अपने सरप्लस फंड्स को मैनेज करने के लिए। यानी मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने कहा चलो 10 लाख रुपए हैं, थोड़ी देर के लिए मैं किसी शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूँ और वहां से मैं नफा या नुकसान हासिल करूंगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए आया, 1 महीने के लिए आया, मैंने शेयर बेचा, मैं चला गया। इसी तरह एक इस्लामिक बैंक है, उसने कहा मेरे पास लोगों का डिपॉजिट ज्यादा है, मैं 1 साल का इसमें सुकूक इन्वेस्ट कर लेना चाहता हूँ, तो वो सुकूक खरीदने आ जाता है। तो इस तरह कैपिटल मार्केट दर हकीकत सरमाए का वो बाजार है जो बैंकिंग सिस्टम के अलावा होता है। बैंक भी इसमें आ सकते हैं अपनी खरीदारी के लिए, बेचने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन बैंकिंग का जो एक फॉर्मल निज़ाम है जहाँ पे आप डिपॉजिट करते हैं, अकाउंट खोलते हैं, इस्लामिक बैंक हो या गैर इस्लामिक बैंक हो,
उसके साथ साथ एक और फाइनेंशियल सिस्टम में एक जो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है, वो कैपिटल मार्केट करता है। और जिस मुल्क में ये कैपिटल मार्केट जितनी मजबूत होगी, उस मुल्क का जो फाइनेंशियल निज़ाम है, जो निज़ाम है फाइनेंस का, मुआशी निज़ाम है, उतना वो अच्छा माना जाता है। और जितनी ये कैपिटल मार्केट शरिया प्रिंसिपल्स के साथ मुंसलिक होगी, वो उतना ही एक शरिया कंप्लाइंट उस मुल्क का फाइनेंशियल सिस्टम होगा। वहाँ पे हुकूमत को शरई बुनियादों पर कर्जा लेना या फाइनेंसिंग लेना वो आसान होगा। वहाँ पे बिजनेसेस को अपने शेयर्स फ्लोट करना आसान होगा। वहाँ पे कंपनियों को सरमायाकारी हासिल करना आवाम से और कैपिटल मार्केट से वो भी आसान हो जाएगा, और शरिया के मुताबिक हो। तो ये है कैपिटल मार्केट या सरमाए का बाजार। और अगर हम इस्लामिक कैपिटल मार्केट की बुनियाद की बात करें, तो इस्लामिक कैपिटल मार्केट का मतलब क्या हुआ कि वो सारे काम इस सरमाए के बाजार में, इस कैपिटल मार्केट में शरिया कंप्लाइंट उसूलों के मुताबिक किए जाएंगे। इसके तीन अहम हिस्से होते हैं इस कैपिटल मार्केट के, और भी छोटे छोटे हिस्से हैं, लेकिन तीन बड़े हिस्से क्या होते हैं। एक तो होते हैं शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स और शेयर्स, यानी सबसे पहला जो कैपिटल मार्केट के लिए आपके पास एक स्टॉक मार्केट होनी चाहिए, जहां पे कंपनियों के हिस्से यानी कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो बेचे या खरीदे जाते हों। और कंपनियां, अगर एक कंपनी मैंने बनाई, उसमें मैंने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, अब मुझे मजीद सरमाया चाहिए, तो मैं इस हिस्से के बाजार या शेयर मार्केट में जाके अपनी कंपनी के मजीद शेयर लोगों को बेचता हूँ। उसको कहते हैं आईपीओ का प्रोसेस होता है। और उस तरीके से मैं आवाम उन्नास को कहता हूँ कि मेरे साथ मेरी कंपनी में शराकत दारी कर लें और पार्टनरशिप करें और मेरे कंपनी के शेयर होल्डर बने। तो सबसे जो कैपिटल मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट का अहम रोल होता है। और जब हम शरिया कंप्लाइंट या इस्लामिक कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, तो ये जो सारे शेयर्स हैं, ये शरिया कंप्लाइंट होने चाहिए। और हम उन शरिया कंप्लाइंट शेयर्स को इशू भी कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और उन कंपनियों के जो शेयर से डिविडेंड भी हासिल कर सकते हैं, और उन कंपनियों की शेयर की तिजारत से कैपिटल गेन यानी नफा भी हासिल कर सकते हैं। और बहरहाल साथ साथ नुकसान भी हो सकता है। एक तो है, अब उसूली तौर पर जो कैपिटल मार्केट में जो स्टॉक मार्केट होती है, इसको इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है, इक्विटी कैपिटल मार्केट भी कहा जाता है, ईसीएम भी कहते हैं लोग, या शरिया कंप्लाइंट इक्विटी कैपिटल मार्केट भी हम कह सकते हैं। और ये बहरहाल एक रिस्क, इसका रिस्क हाई होता है, क्योंकि आप कंपनियों के अंदर बराह रास्त सरमायाकारी कर रहे हैं, उनके शरिया कंप्लाइंट यानी उनके बिजनेस के अंदर। सॉरी, माजरत, एक अहम कॉल आ गई थी। तो मैं आपको बता रहा था कि जो कैपिटल इस्लामिक कैपिटल मार्केट है, इसके अंदर तीन अहम हिस्से हैं। एक तो शरिया कंप्लाइंट शेयर हैं, दूसरा इस्लामिक फंड्स हैं, जिसको हम इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स भी कहते हैं, और तीसरा हिस्सा होता है सुकूक का।
अच्छा, शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के अंदर कंपनियां खुद स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं और एक आम आदमी उस स्टॉक्स को खरीद सकता है और एक इदारा भी स्टॉक्स को खरीद सकता है। इसी तरह ये जो सुकूक होते हैं, ये हुकूमतें इशू करती हैं सुकूक, या फिर इसको जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर एंटिटीज जो होती हैं, वो इस सुकूक को इशू करती हैं। और फिर इसके अंदर आम आदमी भी सरमायाकारी कर सकता है अगर ये रिटेल सुकूक है, या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि सुकूक को समझना बहरहाल एक टेक्निकल काम है। इसी तरह स्टॉक्स को या शेयर्स की समझ होना भी एक थोड़ा सा टेक्निकल काम है। अब हो सकता है जो फाइनेंस से वाबस्ता लोग हों, जिनको स्टॉक मार्केट की समझ हो, वो तो इसको समझ लें, लेकिन जो लोग एक मतलब एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक कोई और आदमी है जिसके पास पैसा तो है लेकिन उसको इतनी फाइनेंस की समझ नहीं है, तो फिर वो सुकूक में कैसे इन्वेस्ट करे या वो स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करे। तो यहाँ पे वो, ऑल्दो उसको पता है कि ये शरिया कंप्लाइंट है, लेकिन वो मुश्किल में आ जाता है, वो थोड़ा सा उसको मुश्किल होती है। इस चीज का हल करने के लिए इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट है, जो बीच की चीज है, इस्लामिक म्यूचुअल फंड। यानी आप शरिया कंप्लाइंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप शरिया कंप्लाइंट सुकूक सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सीखें, या आपके पास रोज रोज के लिए टाइम निकालना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोज स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है। या फिर आप कहते हैं मैं एक साथ 3 साल का सुकूक में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं तो फंस जाऊंगा 3 साल के लिए। तो मुझे 3 साल नहीं, मुझे तो ऐसा कोई चाहिए कि मैं निकल भी सकूं और पैसा इन्वेस्ट भी कर सकूं और पैसा लेके वापस भी जा सकूं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स में शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो शरिया के प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो जिनके साथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, जिनके साथ शरिया एडवाइजर्स होते हैं, और ये अवामुन नास का अकाउंट खोलते हैं। जैसे बैंक अकाउंट खुलता है, इसी तरह म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलता है। और लोग, ये जो कंपनियां होती हैं इस्लामिक म्यूचुअल फंड, ये उस पैसे से जो अवामुन नास इनके पास अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलती है, वो शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं और सुकूक में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो आगे इस्लामिक बैंकों में भी इन्वेस्ट करते हैं, और इसका एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, यानी कुछ पैसा वहां डाले, कुछ पैसा यहाँ डाला, कुछ पैसा किसी और जगह डाला। और इनके पास प्रोफेशनल मैनेजर्स हायर होते हैं, यानी प्रोफेशनल लोग होते हैं जो इनको जिनका काम यही होता है कि वो स्टॉक मार्केट को स्टडी करते रहें, वो बैंकिंग की मार्केट को स्टडी करते रहें, वो सुकूक मार्केट को स्टडी करें, और एक एक्सपर्ट के तौर पर वो लोगों के सरमाए को उस जगह पे अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें और उनको एक हलाल रिटर्न कमा के दें। तो आप समझे कि कैपिटल मार्केट के अंदर आप डायरेक्ट भी स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, आप डायरेक्टली भी सुकूक मार्केट में जा सकते हैं, और आप अगर चाहें तो ये इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इस सरमाए के बाजार में हिस्सा ले सकते हैं। और समझे, आपने एक वकील को हायर किया है जो एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट का भी, सुकूक की मार्केट का भी, इस्लामिक बैंकिंग को भी समझ रखता है, और आपने अपने 10 लाख रुपए उसके हवाले कर दिए कि भाई तुम इसको इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि मुझे तो इतनी इन मार्केटों की समझ नहीं है, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या मेरे पास ये मेरा शोबा नहीं है। मैं तो एक टीचर हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तो एक आलिम दीन हूँ, तो मुझे इतनी समझ नहीं है, तो आप मेरी हेल्प करें और मेरे मेरे पैसे को आगे इन्वेस्ट करें। तो इसके इस तरह से अब थोड़ा सा मैं ये जो तीन मैंने हिस्से बताए, स्टॉक मार्केट, इस्लामिक फंड और सुकूक, मैं थोड़ा सा इस इक्विटी मार्केट को थोड़ा सा समझाऊंगा, ताकि फिर मैं आपको इस बात को बता सकूं कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं जब वो इक्विटी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं, तो वो किस तरह से या किन बुनियादों पे करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे इक्विटी की इन्वेस्टमेंट, यानी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट। अच्छा,
अच्छा, तो इक्विटी मार्केट के अंदर जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है उसका क्या मतलब होता है कि आप एक शेयर खरीद रहे हो। अब ये शेयर क्या होता है? शेयर एक डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप है, एक एक सबूत है आपकी इन्वेस्टमेंट का किसी कंपनी के अंदर। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं स्टॉक मार्केट से या स्टॉक के बाजार से, हिस्सेस के बाजार से, तो आप उस कंपनी के अंदर मालिक बन जाते हैं। अगर एक कंपनी के 10,000 शेयर हैं और आपने 1,000 शेयर खरीदे, तो आप कंपनी के 10% के मालिक बन गए। और इसके अंदर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप शिरकत कह सकते हैं, ये पार्टनरशिप की बुनियाद पर आप मालिक बने हो। सही है। अच्छा, किस तो जब आप उस शेयर को बेचते हैं या खरीदते हैं, तो आप किसी कागज को नहीं बेच रहे होते, बल्कि अपनी कंपनी के अंदर, उस कंपनी के अंदर अपनी जो मलकियत है उसको खरीद रहे या बेच रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर ये कंपनी का शेयर एक जायज कंपनी का शेयर है, उसका बिजनेस हलाल है और उसके बाकी जो मामलात हैं वो भी सही हैं, तो शरिया स्कॉलर्स उन कंपनियों के शेयर्स की खरीदो फरोख्त को जायज करार देते हैं। और अगर वो कंपनी का काम ही नाजायज है, मसलन एक कंपनी है जो सूदी बैंक है, तो उस कंपनी का शेयर खरीदना नाजायज होता है। तो अगर कंपनी का कारोबार जायज है, उसके बाकी रेशियोज सही है, तो आप उस कंपनी में सरमायाकारी कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑल्दो वो शराकत है, लेकिन आप उसमें पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि जब आप शेयर को बेचते हैं या खरीदते हैं तो दर हकीकत कंपनी के अंदर अपने हिस्से की तिजारत कर रहे हो। इसीलिए अगर कंपनी के मकासद जायज हैं, कोई जायज काम के लिए बनी है कंपनी, तो उसका शेयर खरीदना जायज होता है। चाहे आप वो उसको शेयर खरीद के रखें ताकि आपको डिविडेंड मिले यानी मुनाफा मिले, या आप उसके शेयर को 100 रुपए का खरीद के 120 रुपए का एक महीने बाद बेच दें और आपको 20 रुपए का कैपिटल गेन। तो ट्रेडिंग की नीयत से खरीदें या इन्वेस्टमेंट की नीयत से खरीदें, दोनों सूरतों में अगर ये कंपनी जायज है, उसका बिजनेस हलाल है, तो उसकी शेयर के अंदर सरमायाकारी जायज होती है। और उसके आगे कुछ शराइत है, वो मैं आगे थोड़ा सा मुख्तसर से बताऊंगा। अच्छा, अब मैं ये अगर आप किसी कंपनी की जायज है उसके अंदर आप खरीदारी कर रहे हैं, तो कुछ पाबंदियां होती हैं जो शरिया स्कॉलर्स ने लगाई। ये पाबंदियां जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये खास तौर पे मैं इसके लिए मिसाल लूंगा पाकिस्तान की। कि पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है उसमें जब हम कारोबार करते हैं, तो कुछ पाबंदियां हैं जो यहाँ पे शरिया स्कॉलर्स ने लगाई हैं। उसकी वजह ये है, सबसे पहली पाबंदी ये है कि आप एक शेयर को अगर खरीदेंगे तो आप उसको फौरन नहीं बेच सकते। यानी अगर आपने शेयर खरीदा, और पाकिस्तान में रूल यह है कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपके पास उसका कब्जा तीसरे दिन आता है। यानी आज अगर पहली तारीख है, तो शेयर आपने पहली को खरीदा, तो दूसरी तीसरी तारीख को, तीसरी वर्किंग डे को शाम में जाके या दोपहर में जाके आपके पास उस शेयर का कब्जा आपके अकाउंट में आते हैं। 3 दिन लगते हैं। तो कोई भी आदमी 3 दिन सबको कहते हैं डे ट्रेडिंग, जब बिफोर पोजेशन यानी कब्जा से पहले जो व्यय करना है वो जायज। तो अगर आप आज ही खरीद के आज ही बेचेंगे तो आपकी पहली व्यय के बाद कब्जे से पहले दूसरी व्यय हो जाएगी, तो ये सही है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग भी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शेयर होता ही नहीं और जाके सिस्टम में बेच देते हैं, यानी बगैर चीज के कब्जे के आपने, बगैर चीज के मौजूदगी के आपने खामा कहीं बेच दिया, ये शॉर्ट सेलिंग होती है। इसी तरह एक और होता है मुस्तकबिल का सौदा कर लिया, यानी आप आज खड़े हैं, आपने कहा मैं 1 महीने बाद आपको ये शेयर बेच रहा हूँ। तो शरई नुक्ता नजर से कब्जे से पहले बेचना, बे मादूम यानी वो चीज जो मौजूद ही नहीं है उसका बेचना, या मुस्तकबिल की बे, ये तीनों सूरतें शरई नुक्ता नजर से मना है।
तो ऑल्दो स्टॉक मार्केटों में ये तीनों खराबियां ज्यादातर मार्केटों में मौजूद हैं, लेकिन शरई नुक्ता नजर से ये तीनों खराबियों से आपको बचना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा हुक्म ये होता है कि आप कौन से शेयर खरीद रहे हैं उसकी आपने चेकिंग करनी है। उसके अंदर कुछ रेशियोज हैं जो स्कॉलर्स ने बताए कि आपने उनके अंदर कुछ रेशियोज देखने कि कोई कंपनी का बिजनेस हलाल है, लेकिन साथ साथ उसके वो क्या रेशियोज हैं जो आपने देखने हैं उस कंपनी में सरमायाकारी करने से पहले। तो मैं थोड़ी सी आगे बात करूंगा। इसी तरह अगर कंपनी हैसियत वैसे तो हलाल है, गाड़ियां बनाती है, लेकिन उसके पास कोई 2% आमदनी, उसने सूदी बैंक में पैसा रखा है तो वहां पे सूद की आमदनी आती है, तो फिर इस आमदनी को प्योरीफाई करना पड़ता है, इस इनकम को प्योरीफाई करना पड़ता है। तो ये तीसरी शर्त हो जाती है, या तीसरा हम चीज देखते हैं। चौथी चीज क्या होती है कि अगर आप उस शेयर को खरीदने के लिए कोई सरमाया लेना चाहते हैं, फाइनेंसिंग लेना चाहते हैं, तो आप सूद पर फाइनेंसिंग लेके शेयर ना खरीदें, बल्कि उसके लिए भी शरिया के मुताबिक कोई शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग होनी चाहिए। अच्छा, अब ये सारी चारों चीजें मैं थोड़ा सा और आगे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को आगे बताऊंगा, लेकिन इसको भी आपको सुन के कुछ यकीनन अंदाजा हुआ होगा कि ये वाली समझ रखना और इसके लिए आगे इसको आज की एडवांस समझ रखना और कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो रेशो कैलकुलेट करना, ये तो अकाउंटेंट या फाइनेंस का कोई बंदा तो शायद कर ले जिसके पास टाइम है, लेकिन ये हर आदमी की बस की बात नहीं है। अच्छा, वो क्या उसूल है जिसकी बुनियाद पर हम देखते हैं कि वो कंपनी के अंदर शेयर में सरमायाकारी की जा सकती है या नहीं की जा सकती, तो ये क्या कुछ उसूल है। सबसे पहला उसूल तो है कि कंपनी का जो कारोबार है उसकी जो नेचर है वो हलाल होनी चाहिए। मतलब अगर कोई कंपनी शराब बेच रही है, कोई कन्वेंशनल इंश्योरेंस बेच रही है, कन्वेंशनल बैंकिंग बेच रही है, कोई कैसीनो चला रही है, कोई खराब किस्म की वेबसाइट्स चला रही है, कोई वेपन बेच रही है, इस तरह से कि वो मतलब आम आम बेगुनाह शहरी उससे हलाक हो रहे हैं, तो इस तरह की कंपनियों को शरिया नॉन कंप्लाइंट रखा जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर कंपनी का कारोबार तो जायज है, तो फिर आप ये देखते हैं कि उसके उसके अंदर कुछ और तफसील है जो देखी जाती है, और इसीलिए दुनिया भर में मुख्तलिफ इस्लामिक इंडेक्स या इस्लामिक क्राइटेरिया मौजूद हैं, जो तकरीबन 13 या 14 क्राइटेरिया हैं दुनिया में, जो इस्तेमाल किए जाते हैं कंपनियों की तरफ से, सिर्फ स्टॉक मार्केट की तरफ से, ये देखने के लिए कि वो उनके पास जो शेयर्स हैं वो शरिया कंप्लाइंट कहलाएंगे या शरिया नॉन कंप्लाइंट कहलाएंगे। अब इसकी और तफसील है, लेकिन क्योंकि हमारा ये मुख्तसर सा मैं यहाँ बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा फोकस जो है वो ये बताने का मकसद फिर हमें म्यूचुअल फंड पे आना होगा कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी ने, ये पाकिस्तान का क्राइटेरिया, इसको हम कराची मीज़ान इंडेक्स यानी कराची मीज़ान इस्लामिक इंडेक्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फॉलो होता है, ये उसको उस वो इस उसका ये बुनियादी क्राइटेरिया है कि अगर कंपनी ने सूद पर कोई कर्जा लिया हुआ है तो वो कर्जा उसके टोटल असासों के मुकाबले में 37% से भी कम होना चाहिए। और आईओफी का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो उसको कहता है कि 33% से भी कम होना चाहिए। और इसकी वजह यह है कि एक तो उसूलन सूदी कर्जा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी कंपनी ने, किसी मुल्क में सूदी निज़ाम मौजूद है और कंपनी ने सूद पर कर्जा लिया हुआ है, तो ये मसला आप लोग बेहतर जानते हैं कि अगर सूद पे कोई कर्जा लेके कोई हलाल काम करे तो हलाल आमदनी तो नाजायज नहीं होती, लेकिन सूद पे कर्जा लेने का गुनाह बहरहाल उसको मिलता है। तो और ये कम से कम होता जाना चाहिए, इससे जान छुड़ानी चाहिए। तो सूदी कर्जा 37% या आईओपी के नजदीक 33% से भी कम होना चाहिए। फिर कंपनियों के अंदर एटलीस्ट कुछ ऐसे असासे होने चाहिए जो जामिद असासे या इलिक्विड एसेट्स। इसमें जो पाकिस्तान में क्राइटेरिया वो कहता है कि कम से कम कंपनियों में सारा सरमाया कैश की सूरत में नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई 20-25% या 25% के करीब उसके पास फिक्स एसेट्स या जामिद असासे होने चाहिए, ताकि जब आप शेयर की खरीदो फरोख्त करें तो नकद की खरीदो फरोख्त का हुक्म ना आए, बल्कि उसके साथ एक एक्चुअल एसेट भी मौजूद हो। कंपनी के अंदर कोई जमीन है, कोई बिल्डिंग है, कोई इक्विपमेंट है, कोई इन्वेंट्री है, ताकि सामान भी मौजूद है। इसी तरह अगर कंपनी ने
खुदा ना खास्ता कंपनी तो हलाल काम के लिए बनी है, लेकिन उसने कुछ सरमाया बैंकों में रखा हुआ है, किसी बॉन्ड में डाला हुआ है, तो वो सरमाया कंपनी के टोटल एसेट के 33% यानी एक तिहाई से कम होना चाहिए। अगेन यहाँ पे ये बात है कि कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट तो आइडली 100% होनी चाहिए, लेकिन अगर कंपनियां पब्लिक लिमिटेड हैं और उन्होंने ये काम किया हुआ है, तो फिर दूसरा चेक ये होता है कि उस गलत इन्वेस्टमेंट से जो उसके पास रेवेन्यू आ रहा है, जो उसके पास आमदन आ रही है, वो टोटल हलाल आमदन यानी टोटल आमदनी में 5% से भी कम होनी चाहिए। यानी हराम जरिए से अगर कोई आमदनी आ रही है, कोई रेवेन्यू आ रहा है, तो उसके टोटल रेवेन्यू में उसका हिस्सा 5% से भी कम होना चाहिए। और फिर ये जो 5% से भी कम हिस्सा है, जैसे 4% है, इस सरमाए को, इस आमदन को जब आपको डिविडेंड मिलेगा तो आपने इसको चैरिटी में डाल दो। इसी तरह एक और क्राइटेरिया है कि कंपनी के पास जो लिक्विड एसेट है, यानी ऐसे ऐसे एसेट जो कैश के बराबर है, और उसके पास कुछ ऐसे एसेट भी होंगे जो कैश के अलावा हैं, जैसे ऊपर बाजू के 25% कम से कम ऐसे एसेट होने चाहिए जो कैश के अलावा है। तो कंपनी, जैसे कंपनी के पास 75 रुपए के एसेट हैं जो कैश के बराबर हैं, और 25 रुपए के एसेट हैं जो जामिद असासे हैं, जमीन है, इन्वेंट्री है, प्लॉट है, मशीन है। तो कंपनी का जो शेयर है वो 75 रुपए से ज्यादा का बिकना चाहिए, यानी कैश के मुकाबले में कैश जो है, जो शेयर की कीमत है, वो असल जो कंपनी में नकद मौजूद है उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये समझ लें आपके पास कोई 5 क्राइटेरिया होते हैं। इसकी बुनियाद पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी हमारे यहाँ बैंक में, निजाम बैंक में और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ हम लोग के काम करते हैं, तो पूरे स्टॉक मार्केट की कोई 600-700 कंपनियों को हम चेक करते हैं, उनके एनुअल अकाउंट्स को, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और ये पूरी एक वर्किंग करते हैं, कई दिन लगते हैं इसमें, जिसके अंदर ये चेक करते हैं कि कौन सी कंपनियां इस शरिया कंप्लाइंट क्राइटेरिया पे आती हैं और कौन सी नहीं आती। तो उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो 2 इस्लामिक इंडेक्स इशू करता है। एक KMI 30 इंडेक्स इशू करता है, एक ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स इशू करता है। और उसका मकसद क्या होता है कि अब ये सारा तफसील आवाम को बता दी जाए, और अवाम उन्नास उस तफसील की बुनियाद पर, उस क्राइटेरिया की बुनियाद पर उनको ये खुद ये काम ना करना पड़े, और उनको ये एक बना बनाया इस्लामिक इंडेक्स मिल जाए, जिसको देख के वो अगर चाहे तो खुद सरमायाकारी कर सकें, और साथ में अगर उनकी आमदन, कोई नाजायज आमदन उनको आ जाती है उनके डिविडेंड की सूरत में, तो उसको वो चैरिटी में दें। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली ये सारा करने के बावजूद मुश्किल होता है, और यहीं से उसका रुझान जो है, या उसको मैं एडवाइस ये करता हूँ, किसी ऐसे आदमी को अपना वकील रखो, एक ऐसी कंपनी के साथ जाम दो, और यहाँ से फिर हमारे पास म्यूचुअल फंड आ जाते हैं। अच्छा, दुनिया में और भी क्राइटेरिया है, मैं अभी उस पर तफसील में नहीं जाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई 14-13-14 क्राइटेरिया है शेयर्स को स्क्रीन करने के। डाउ जोन्स का अपना है, IOC का अपना है, और इसी तरह और बहुत सारे क्राइटेरिया मौजूद है। इसी तरह फिर तफसील और भी होती है शेयर्स के अंदर। बहुत सारी चीजें जो नहीं की जा सकती, जैसे शेयर्स के आप नॉन कंप्लाइंट कंपनियों का शेयर नहीं खरीद सकते, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई सूदी बैंक है, उसके शेयर नहीं खरीद सकते, आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, आप इंटरेस्ट बेस्ड बोरिंग नहीं कर सकते, आप कब्जे से पहले शेयर नहीं बेच सकते, आप मुस्तकबिल का सौदा नहीं कर सकते। तो इस तरह और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप एक जायज शेयर की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं कब्जा लेने के बाद, आपको डिविडेंड इनकम मिलेगी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें से आपने प्यूरिफिकेशन करनी होती है। आप कैपिटल गेन आप हासिल कर सकते हैं। आपकी कंपनी एक हलाल काम कर रही है तो उसका आप उसका शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसी तरह ये शेयर्स की बात हुई। इसी तरह हम अगर सुकूक की बात करें तो सुकूक खुद एक स्पेशलाइज एरिया है, उसके अंदर इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे सुकूक होते हैं। कोई सुकूक क्या होता है? एक सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप होता है जो किसी बिजनेस को, किसी इन्वेस्टमेंट को, किसी एसेट में आपकी इन्वेस्टमेंट को जाहिर करता है।
ये जारा की बुनियाद पर भी हो सकते हैं, ये और शराकत की बुनियाद पर भी हो सकते हैं, और मुख्तलिफ बुनियादों पर हो सकते हैं। हर सुकूक को समझने का एक अपना एक क्राइटेरिया होता है। अब ये सवाल आता है कि एक आम आदमी जो शरिया के मुताबिक सरमायाकारी करना चाहता है, और वो चाहता है कि बैंकों के अलावा भी उसके पास कोई मुतबादिल तरीकेकार हो, तो या तो वो खुद जाके सुकूक खरीदे, उसका एक्सपर्ट बने, खुद जाके शेयर खरीदे, उसका एक्सपर्ट बने, या जो तीसरा हल है कि वो किसी इस्लामिक म्यूचुअल फंड या इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड में हिस्सा डाले, और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो उसको हेल्प आउट करे, उसको गाइड करे, उसको असिस्ट करे शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करने। और इस्लामिक म्यूचुअल फंड में ऐसे माहिरीन होते हैं जो फुल टाइम उनके मुलाजमीन होते हैं, जिनकी मकसद यही होता है कि वो उस तनख्वाह इस बात की ले रहे होते हैं कि वो हर रोज बैठ के अपनी अपनी एक्सपर्टीज की बुनियाद पर सुकूक में या इक्विटी फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और हम आगे भी देखेंगे कि वो एक तरह के फंड नहीं होते, इस्लामिक इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड भी मुख्तलिफ तरीकों के होते हैं। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लोग सरमायाकारी स्टॉक में करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टॉक का म्यूचुअल फंड होता है। कुछ लोग सिर्फ इस्लामिक बैंकों में करना चाहते हैं, उसके लिए इस्लामिक बैंकों का म्यूचुअल फंड होता है। कुछ लोग सुकूक में करना चाहते हैं, उसके लिए सुकूक का म्यूचुअल फंड होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम गोल्ड में करें, तो कमोडिटी में करें, यानी तो गोल्ड का म्यूचुअल फंड हो सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम रियल एस्टेट में करें, यानी जमीनों में करें और रियल एस्टेट के जो एसेट्स हैं उसमें करें, तो उनके लिए रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड होता है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं थोड़ा सा आगे अपनी बात को चलाता हूँ। जनाब, गोल्ड म्यूचुअल फंड की सिस्टम कैसा है? देखिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड का मतलब ये हुआ कि एक तो मैंने आपको बताया ना कि कैपिटल मार्केट के अंदर हमने इक्विटी में सरमायाकारी कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड की सिस्टम कैसा है वो? गोल्ड म्यूचुअल फंड का सिस्टम ये होता है कि ये देखिए, म्यूचुअल फंड्स की ना मुख्तलिफ किस्में होती हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में भी जाते हैं तो ये खुद एक बड़ी दुनिया है। इसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इक्विटी का फंड है जिसमें आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं। इजारा के फंड हैं जहाँ पे आप मोस्ट लाइकली ऐसे सुकूक में जा रहे हैं जो किराएदारी पर मुश्तमिल होते हैं। कमोडिटी फंड्स हैं, कमोडिटी मुराबा फंड्स हैं, यहाँ पे आप उन फंड्स में जा रहे हैं जो तबर्रुक करते हैं। रियल एस्टेट फंड है, इसी तरह कमोडिटी फंड्स भी होते हैं। यानी अब आपने कहा कि आपने उस म्यूचुअल फंड को ये पैसे दिए थे, मेरे पास 20 लाख रुपए आपने लिए, और मुझे लगता है कि गोल्ड में सरमायाकारी करना अच्छा है, तो आप मेरे पैसे को ले जाके गोल्ड में इन्वेस्ट करें। जब गोल्ड खरीदने का अच्छा टाइम हो तो खरीद लें, जब बेचने का अच्छा टाइम हो तो बेच दें, फिर खरीदें बेचें, इस तरह मेरा पैसा, मेरा एक्सपोजर जो है वो गोल्ड में चाहिए। तो म्यूचुअल फंड कैपिटल मार्केट के जो आम चीजें हैं उसके अलावा फिर कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर वो जो इस्लामिक जो म्यूचुअल फंड होगा जो गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, वो क्या करेगा कि वो गोल्ड खरीदेगा और फिजिकल गोल्ड अपने पास, या इसका इंतजाम करेगा कि वो वॉल्ट में रखे अपने पास, या कोई किसी जगह पे किसी ट्रस्टी के पास गोल्ड रखवाए। और जब गोल्ड ऊपर जाएगा तो वो म्यूचुअल फंड की कीमत बढ़ेगी, जब गोल्ड नीचे जाएगा तो वो म्यूचुअल फंड की कीमत कम होगी। अभी आपने देखा होगा पिछले 1 डेढ़ साल में गोल्ड काफी ऊपर गया है। तो जिसने अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया था तो वो उसको म्यूचुअल फंड में किया था तो उसको भी अच्छा फायदा होगा। और इसकी मिसाल ऐसे कि एक तो ये कि मैं खुद गोल्ड खरीद के अपने घर में रख लूँ या लॉकर में रख लूँ। दूसरा तरीका ये कि मैं इस सिक्योरिटी की वजह से, और मुझे बार बार गोल्ड खरीदना बेचना नजर समझ में भी नहीं आता, मुश्किल लगता है, तो मैं गोल्ड के फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये गोल्ड म्यूचुअल फंड होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी फंड्स होते हैं, जारा फंड्स होते हैं, सुकूक फंड्स होते हैं, कमोडिटी फंड्स होते हैं, कमोडिटी मुराबा फंड्स होते हैं, रियल एस्टेट फंड्स होते हैं, मिक्स फंड भी होते हैं। मिक्स फंड का मतलब ये होता है कि आप एक से ज्यादा चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मसलन मैंने कहा कि भाई 50% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, 50% सुकूक में इन्वेस्ट करें, ये मिक्स फंड हो गया। मैंने कहा कि 10% गोल्ड में इन्वेस्ट करें,
बाकी 90% किसी इस्लामिक बैंक में इन्वेस्ट करें। तो ये एक मनी मार्केट फंड टाइप का बन जाता है। ये भी एक इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट हो सकता है। लेकिन इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड या म्यूचुअल फंड जो भी होंगे वो एक शरिया कंप्लाइंट तरीके से ही सरमायाकारी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो समझना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ये होता है कि इनके पास एक कंपनी होती है तो हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यानी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है और फिर एक वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो लोगों से जो जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, इसको हम रख देते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये एक कंपनी है। इसके अंदर ये कंपनी में वो लोग हैं जो समझे एक्सपर्ट हैं जो हायर किए गए इस कंपनी। ये कंपनी क्या कर रही है, ये एक फंड को मैनेज कर रही है, या एक से ज्यादा फंड्स को मैनेज कर रही है। तो ये जो फंड है आपका, इसको मैनेज कर रही है। सॉरी, और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो अवाम उन्नास को ये बताती है कि हमारे पास ये तजुर्बेकार लोग हैं और हम आपकी बुनियाद पर मुख्तलिफ आपके पैसे से मुख्तलिफ फंड मैनेज करेंगे। तो वो जो पैसा होता है वो फंड मैनेजमेंट के पास, यानी वो फंड के पास चला जाता है और उस फंड से आगे सरमायाकारी की जाती है। ये एहसन उल इस्लाम साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मोहतरम, म्यूचुअल फंड के अंदर हमने सुना कि दो तरह का अकाउंट होते हैं, एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और दूसरा क्लोज एंडेड। वो क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा जी, क्लियर करेंगे तो ने हमारे लिए। एक और बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड भी होते हैं। यानी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसमें आप यानी जब चाहे आए और जब चाहे चले जाएं। तो यानी मैंने आज एक एक फंड में पैसा डाला और मैं एक हफ्ते बाद उसमें से निकल जाऊं। ओपन यानी ओपन है, वो हमेशा आना भी ओपन है, जाना भी ओपन। ये होता है ओपन एंडेड फंड। अच्छा, आम आदमी के लिए, रिटेल आदमी के लिए ना ये सबसे अच्छा है, क्योंकि वो जब चाहे पैसा लेके आए, जब चाहे लेके चला जाए। जो भी उस दिन की फंड की कीमत होगी, यूनिट की कीमत होगी, उस पर वो आ सकता है और जा सकता है। क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं, खासतौर पे जो रियल एस्टेट फंड है ना, रीट्स, ये क्लोज एंडेड होते हैं नॉर्मल। यानी आप जब ये फंड बन रहा होता है तो ऐलान करते हैं भाई हम एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फंड बना रहे हैं, आओ पैसे दे दो। अब 5,000 लोगों ने पैसे दिए। अब ये पैसे से उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी। अब वो प्रॉपर्टी में रेंट पे चली गई, आगे बिल्ड होगी, उसमें काम होगा। अब ये असल सरमाया लोगों को वापस नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ये एक शेयर दे देंगे लोगों को, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है। अब आपने अगर जाना है तो आपको, अगर आपने इसको यानी आपने कंपनी से निकल के जाना है तो आपको कंपनी का जो वो जो क्लोज एंडेड फंड का यूनिट है वो स्टॉक मार्केट में बेचना पड़ेगा, कंपनी आपसे वापस नहीं खरीदेगी। ये होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड ये होता है कि कंपनी खुद आपसे वापस खरीदने को तैयार है, रोज की बुनियाद पर रोज की एक ऑफर एक्सेप्टेंस है। जैसे बैंक है ना, बैंक में अगर आप एक सेविंग अकाउंट खोलेंगे तो बैंक में आप जाके अपना सरमाया वापस ले सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड फंड उसने एक एक हफ्ते के लिए अनाउंस करते हैं कि भाई मैं जो मेरे से काम करना चाहता है मुझे पैसे दे दो। ये 5 साल तक ये फंड चलेगा या 10 साल तक, या ये परपेचुअल चलेगा। और जिसको एक दफा मैं पैसा ले लूंगा मैं उसको एक यूनिट दे दूंगा। अब ये यूनिट आपको मेरे पास से खुला नहीं होगा, बल्कि आपने अगर इसको बेचना है तो आपको स्टॉक मार्केट में जाके बेचना पड़ेगा। तो खास तौर पे मेरे होता है ना, ये जो रीट्स होते हैं, रियल एस्टेट फंड, ये ज्यादातर क्लोज एंडेड होते हैं, क्योंकि उसमें आपको सरमाया एक जगह चाहिए होता है। और वो रोज की बुनियाद पर वो ये नहीं कर सकते कि आज आपने प्रॉपर्टी खरीदी, जैसे इन्वेस्टर ही भाग गया
तो वो तो फिर प्रॉपर्टी भी गई हो सकता है, नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए वो क्लोज एंडेड भी हो सकता है। तो ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। जजाकल्ला अच्छा, जजाक। अगर इक्विटी फंड होते हैं, अच्छा सबसे पहले तो ये समझें कि जो भी फंड होगा उसके अंदर जो भी इन्वेस्टर पैसे डाले, वो एक जॉइंट पूल में पैसा आ जाएगा। आप एक फंड बनाएंगे, उसके अंदर उसको पैसे को जमा कर देंगे, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी को उसका वकील मुकर्रर कर देंगे। इसके लिए वकालतुल इस्तिस्मार का नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो मुलाजमीन है, जो कंपनी है, वो इस फंड की वकील होती है कि भाई मैं इस फंड के अंदर सरमाए को एज अ वकील मैनेज करूंगा, और उसकी एक उसको वकाला फीस मिल जाती है। और साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि अगर मैंने बहुत अच्छा काम किया तो मुझे इसका कोई बोनस भी मिलेगा। और जो पैसा जमा हुआ उसके पास, अगर वो इक्विटी फंड है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो वकील है, जो उसकी जो माहिरीन है, वो उस पैसे से शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स खरीदेंगे, शरिया कंप्लाइंट तरीके से। कभी खरीदेंगे, कभी बेचेंगे, कभी रखेंगे, और वहां से उनको डिविडेंड इनकम भी मिलेगी और कैपिटल गेन भी मिलेगा। और उसकी वजह से जो इक्विटी फंड में जो सरमायाकार है, उसका सरमाया ऊपर या नीचे जाएगा, उसको नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन फायदा क्या हुआ एक आम आदमी को कि भाई मुझे तो, एक मैं आम आदमी हूँ या मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो इतनी समझ नहीं है कि मैं रोज स्टॉक मार्केट को देखूं। तो मैंने अपनी बचत को अपने इसे एक इक्विटी फंड में डाल दिया, और अब वो इक्विटी फंड का जो मैनेजर है, जो वकील है, वो रोज की बुनियाद पर स्टॉक मार्केट का तज्जिया करता है, उसका एनालिसिस करता है, उसका जायजा लेता है, और उसमें सरमायाकारी करता है कि कब डालना है, कब निकलना है। बस उसको ये इंश्योर करना है कि जो शरई उसूल बताए गए हैं सिर्फ उन्हीं कंपनियों में खरीदारी करें, और जो शरिया के मुताबिक खरीदारी और बेचने का, जो तिजारत करने का जो जायज तरीका है, सिर्फ उस जायज तरीके से काम करे, और जो भी नाजायज तरीका है उससे वो काम ना करे। फिर बहुत सारे जो इक्विटी फंड्स होते हैं, वो ये भी करते हैं कि जब डिविडेंड आता है तो वो खुद उसको उसमें से प्योरीफाई कर देते हैं। जो नाजायज आमदन होती है वो खुद निकाल के चैरिटी में डालते हैं। तो जो इन्वेस्टर होता है उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसको सीधा सीधा एक सर्विस मिल जाती है, और उसको एक उसकी वो फीस दे देता है। तो अच्छा, मतलब आमतौर पर ये फीस डिविडेंड से ले जाते हैं कंपनी, या खुद नहीं, असल क्लाइंट में क्या देना होता है कि पड़ेगा? वो ये नॉर्मली तय करता है कि अगर आप मुझे 100 मिलियन रुपए मुझे देंगे, तो मैं 1% फीस लूंगा। जैसे, तो अगर आमदनी हुई तो वो आपकी 1% आमदनी में से निकाल लेगा। जैसे किस्मत ऐसी थी कि उस साल आमदनी ही नहीं हुई, तो वो आपके असल में से निकाल लेगा, क्योंकि वो तो वकील है, उसको तो एक फिक्स तनख्वाह चाहिए ना। तो आप केस जीते या हारे, वकील को तो पैसे मिल जाते हैं। तो इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, हाँ ये कर सकता है कि वो क्या जी, इस साल आमदनी कम हुई या नुकसान हुआ है, तो मैं अपनी फीस आधी ले लेता हूँ, ये तो कर सकता है वो अपनी मर्जी से। लेकिन आमदन उसकी जो फीस है ना, वो तो फंड अंडर मैनेजमेंट से लेता है। अगर फंड का साइज 100 अरब है, 10 अरब है, 1 अरब है, वो उसका एक परसेंटेज ले लेता है। इसको, और ये इसको ना डिस्क्लोज भी किया जाता है, इसको मैनेजमेंट फीस भी कहा जाता है। और ये जब फंड की डॉक्यूमेंट बनती हैं या फंड का एक रिपोर्ट बनती है हर महीने, उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि जो फंड मैनेजर है वो कितनी फीस चार्ज करेगा। तो जब आप इसको एडवांस लेवल पे देखते हैं तो फिर आपको ये वाली चीजें भी आप देख रहे हो। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्चुअली जो मैनेजमेंट ऑफ फंड होती है, यानी जो वकील होता है, ये मुदारबा, इसको वकाला की बुनियाद पर भी काम कर सकते हैं, और ये काम हम मुदारबा की बुनियाद पर भी कर सकते हैं। यानी वकील बनाने के बजाय उसको पार्टनर बनाने, कि तुम मेरे पार्टनर, जैसे इस्लामिक बैंकों में होता है कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ मुदारबा की बुनियाद पर, तुम इससे सरमायाकारी करो, नफा होगा तो तुम्हें भी मैं हिस्सा दूंगा, नुकसान हुआ तो मेरा नुकसान। या वकाला की बुनियाद पर करो। शरण दोनों तरह पॉसिबल है, लेकिन मैंने जो ज्यादातर देखा है दुनिया में और पाकिस्तान में भी, वो वकाला ही की बुनियाद पे, वकालतुल इस्तिस्मार या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर किया जाता है। अगर मुदारबा होगा तो दोनों का एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तय हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो वकील को, मुदारिब को भी मिल जाएगा, रब्बुल माल को भी मिल जाएगा। और अगर वकाला हुआ तो वकील को एक फीस मिलेगी। ये फीस लमसम भी हो सकती है जी, 5 लाख रुपए माहाना मिलेगी आपको,
ये परसेंट में भी हो सकती है, ये मंथली भी हो सकती है, सालाना भी हो सकती है, इसमें बड़ी गुंजाइश है। अच्छा, ये भी हो सकती है कि जितने आप असासे मैनेज करेंगे उस असासों का आधा परसेंट 1% फीस होगी। जितना जैसे फंड का साइज बढ़ेगा उसकी फीस भी बढ़ जाएगी। और हो सकता है उसको इसके लिए सिस्टम भी बनाना पड़े, उसको ज्यादा मुलाजमीन भी रखने पड़े, तो ये जस्टिफाई भी हो जाता है। अच्छा, इसी तरह इक्विटी फंड के साथ साथ जितने भी म्यूचुअल फंड है उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो एक ही जैसा होगा, सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फर्क होती है। अगर इक्विटी फंड है तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में लिखा होगा ये इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। अगर सुकूक का फंड है तो लिखा होगा कि ये सुकूक में इन्वेस्ट करेगा। अगर गोल्ड का फंड है तो लिखा होगा कि ये गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, फिर उस गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करने का शरई तरीकेकार लिखा हुआ होगा। और अगर ये कोई और तरीके का होगा तो उसमें फिर वो चीज लिखी भी होगी। अच्छा, इसी तरह मिक्स फंड भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल उसमें एसेट्स हैं। अच्छा, एक और फंड होते हैं जिसको हम कहते हैं रियल एस्टेट फंड्स। ये ज्यादातर क्लोज एंडेड होते हैं। इसमें क्या होता है, अगेन देखिए अब इसका फायदा क्या है। अब मैं एक आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है या 1 मिलियन रुपए है, तो मैं तो एक प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। प्रॉपर्टी तो 100 100 मिलियन की है। तो मैंने फंड में पैसे डाल दिए, रियल एस्टेट फंड में, या और लोगों ने ही पैसे डाल दिए, तो फंड मैनेजर के पास कोई 200 मिलियन रुपए आ गए। अब उसने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। तो इस तरह मैं थोड़े से पैसे से भी रियल एस्टेट में सरमायाकारी का आगाज कर सकता हूँ। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, जैसे पाकिस्तान में हमने देखा है कि आपको म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलने के सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए। तो आप 5,000 रुपए 10,000 रुपए से भी सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं, उसके लिए अकाउंट खुलता है। अच्छा, रियल एस्टेट फंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड है, जिसका मकसद क्या होता है कि प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जाए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाए। उसकी मिसाल है कि जैसे ऑफिस की बिल्डिंग है, शॉपिंग प्लाजा है, कोई फैक्ट्री है, कोई वेयर हाउस है, कोई घरों की पूरा कॉम्प्लेक्स है। इसमें भी क्या होता है, जो पैसा लोग देते हैं वो एक पूल में आ जाता है, और उस पूल से जो फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है वो या तो असासे खरीद के किराए पे दे देती है। इसको हम कहते हैं रेंटल रीट, के रेंटल इनकम से आमदनी होगी, किराए की आमदनी। दूसरा, जब वो आम प्रॉपर्टी बिकेगी 10 साल बाद 5 साल बाद तो कैपिटल गेन होगा, ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि ये डेवलपमेंट रीट हो, यानी रेंटल के बजाय ये प्रॉपर्टी मैंने पैसा लिया लोगों से कि भाई मैं एक घर बनाऊंगा, एक बिल्डिंग बनाऊंगा, एक प्लाजा बनाऊंगा, तो ये 3 साल में ये प्लाजा बना के मैं बाजार में बेचूंगा। तो अब आप एक अकेले आदमी के पास इतने पैसे नहीं कि प्लाजा बनाए, लेकिन आप रीट के थ्रू प्लाजा बनाने की जो पूरी कारोबार है उसमें शराकत डाल दिया आपने। अच्छा, ये रीट चाहे रेंटल रीट हो या डेवलपमेंट रीट हो, ये क्लोज एंडेड हो। इसमें आप एक दफा घुस के ऐसे फौरन से बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलने का ये तरीका है कि आप इसका शेयर बाजार में बेचो, स्टॉक मार्केट में बेचो। तो नॉर्मली रीट जो है ना वो लिस्टेड हो, और इसमें एक समझ लें आप, वैसे तो डेवलपमेंट रीट में अगर आप जा रहे हैं, एक प्रॉपर्टी बन रही है तो उसके सबर करना। जी एहसान साहब। मोहतरम, ये जो क्लोज एंडेड फंड होता है तो कंपनी साल के अंदर ऐसे थोड़े थोड़े बहुत सारे क्लोज एंडेड फंड को ऐलान करते हैं। और इन्वेस्टर ये ऐलान कहाँ पाते हैं? सिर्फ वेबसाइट में? और उसका और कोई तरीका है देखिए, पाने दो के लिए, चीजें हो जानने के सकती लिए? हैं कि अगर ये क्लोज एंडेड फंड्स जो होते हैं ना, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो इसका ऐलान करती है कि भाई हम एक क्लोज एंडेड फंड ला रहे हैं, हम एक रियल एस्टेट फंड ला रहे हैं। तो ये वो अपने इन्वेस्टर्स को भी इत्तला देती है, वेबसाइट पे भी देती है, कई दफा वो बैंकों से राब्ता कर लेती है कि बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को इसकी तस्वीर करें। वो जाके स्टॉक मार्केट से राब्ता करती है कि भाई आप लोगों को बताएं कि, क्योंकि इसमें इसके लिए आपको समझ लें स्टॉक मार्केट का अकाउंट चाहिए होता है। तो आप फिर स्टॉक मार्केट के ब्रोकर के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली रियल एस्टेट फंड्स जो होते हैं ना वो स्टॉक मार्केट पे अनाउंस होते हैं।
जबकि जो शुक्रिया। दूसरे म्यूचुअल फंड होते हैं ना, वो तो अपनी कंपनी अनाउंस कर देती है, आप उनके ऑफिस में जाके सरमायाकारी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ओपन है ना, जब आओ जाओ आओ जाओ। लेकिन ये जो क्लोज वाले हैं ना, ये स्टॉक मार्केट पे आपको नॉर्मली मिलते हैं। तो मोहतरम, ये क्लोज एंडेड फंड में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, जी। तो वो रियल एस्टेट में उसका एक हिस्सा हो जाता है। हम्म। ये सही है या नहीं? जी जी, ऐसा ही होता है। अगर उसने आगे 100 घर खरीद लिए तो आपका उसमें एक हिस्सा हो गया, टोकन हो गया। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये रियल एस्टेट टोकन है, टोकन, या रियल एस्टेट शेयर है। रियल एस्टेट शेयर, ये या हाँ। जब भी, और अगर ये आगे वो प्रॉपर्टी, अच्छा अब यहाँ ये इसमें शरिया कंप्लाइंट रियल एस्टेट भी है, नॉन शरिया कंप्लाइंट भी है। मतलब वो आगे उसमें एक होटल बना हुआ है जहाँ शराब बिक रही है, कैसीनो है, डांस फ्लोर है, तो आप कहेंगे भाई ये कहाँ से फंसा दिया। तो ये इसके लिए भी आगे शर्त है, इसकी आगे स्क्रीनिंग होती है कि आपने अगर रेंटल रियल एस्टेट है, तो वो जो किराए पे आपने किसी सूदी बैंक को नहीं देना, किसी शराब की कंपनी को नहीं देना, किसी आपने क्लब को नहीं देना, बल्कि आपने किराएदार भी वो रखना है जो शरिया के मुताबिक काम करता हो। तो इसलिए फिर इस्लामिक रीट जो बनते हैं उसके अंदर फिर आपके जो सरप्लस आपके पास किराए की आमदनी आई, वो आपने सूदी बैंक में नहीं इन्वेस्ट करनी, पूरा एक शरिया कंप्लाइंट का मैकेनिज्म रखना है। आपके जो एग्रीमेंट होंगे किराए के, वो भी शरिया कंप्लाइंट होने चाहिए। अब जैसे हमें पता है, एक हमने पाकिस्तान में एक शरिया कंप्लाइंट रीट था, उसने पूरी प्लाजा को लेके खरीद के किराए पे दिया, तो वहां पे एक बैंक भी था, तो उन्होंने फिर उस बैंक से वो जगह खाली कराई, सूदी बैंक का। एक 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 दुकान थी जहाँ गान जो यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिकते हैं, उन्होंने वो जगह खाली कराई, और जब तक मेरे ख्याल में वो खाली नहीं हुई, उसकी जो आमदन थी वो चैरिटी में डाली, क्योंकि वो आमदन सही नहीं थी फिर, क्योंकि उसका उसका इस्तेमाल गलत हो रहा था ना, उस जगह का, उस दुकान का। 100 दुकानें होंगी, एक दुकान का गलत इस्तेमाल हो रहा। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल और प्रॉपर्टी के मुआहदे और सरमाया, जो सरमाया का पैसा आएगा, जो इस प्रॉपर्टी के लिए आप कर्जा लेंगे, फाइनेंसिंग लेंगे, सब कुछ शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए, तो फिर ये इस्लामिक बनेगा। तो इसके अंदर फिर ये क्राइटेरिया है कि मैंने आपको यहाँ बताया कि कौन सी चीज पे आप काम नहीं कर सकते, कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो रिबा पे काम करती हैं उन पे आप नहीं, उनको नहीं देंगे आप। गैम्बलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन हलाल प्रोडक्ट्स हैं, कन्वेंशनल इंश्योरेंस है, ऐसी इंटरटेनमेंट एक्टिविटी जो शरिया नॉन कंप्लाइंट है। इसी तरह टोबैको वगैरह को भी मना करते हैं स्कॉलर्स। और इसी तरह स्टॉक ब्रोकरेज कंपनियां जो होती हैं, जो ज़्यादातर सही और गलत काम मुश्तरका कर रही होती हैं, उनको भी मना करते हैं। ऐसे होटल या रिजॉर्ट जहाँ पे शराब सर्व हो रही होती है या कोई गलत काम हो रहे होते हैं, उनको भी मना किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होटल इस्लामी मुल्कों में, एटलीस्ट पाकिस्तान वगैरह में इतना मसला कम है, लेकिन हो सकता है मसलन बांग्लादेश में भी ये मसला कम होगा, लेकिन बहरहाल कई मुल्कों में ये मसला ज्यादा होता है होटलों का। अच्छा, अभी किसी ने सवाल पूछा था कि स्टॉक मार्केट में कैसे सरमायाकारी कर सकते हैं, तो वही बात है कि आप स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने के लिए आप एक स्टॉक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलते हैं। जैसे बैंक में बैंक अकाउंट खोलते हैं ना, तो इसलिए आप इस तरह आप एक स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हैं। और इसके साथ साथ एक डिपॉजिटरी कंपनी होती है जो आपके शेयर रखती है, तो आप उसके पास अपने अकाउंट खोलते हैं। तो ये दो काम आप कर रहे होते हैं। तो फिर आप अपने पैसे वहां रखवाते हैं, फिर आप उसको, ज्यादातर कंपनी आजकल ये होती है कि आपको एक सॉफ्टवेयर पे दे देती है। आप ऐप के बुनियाद पर वो शेयर्स उसको बता सकते हैं कि मुझे ये शेयर्स खरीदने हैं। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे कि बताया ना कि हर आदमी को हम एडवाइस नहीं करते कि खुद जाके स्टॉक मार्केट में धंधा करना शुरू कर दें, बल्कि उसको हम ये कहते हैं, अगर आपको समझ नहीं है तो आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड का तरीका इख्तियार करें। लेकिन अगर आप समझते हैं, आप समझदार हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आप जा सकते हैं, वहां पे मना नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ना स्टॉक मार्केट में लालच में मारे जाते हैं, जल्दबाजी में, लालच में, समझ नहीं होती, अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। भाई आप 40 साल डॉक्टर रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट तो नहीं आती ना आपको, तो आप खामखा समझदारी का
एक खामा खा का मुजाहरा भी ना करें, बल्कि अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए एक्सपर्ट्स के पास जाएं। मोहतरम, ओपन एंडेड के बारे में एक आखिरी सवाल था। तो ओपन एंडेड फंड में जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और जी। मैनेजर ये इन्वेस्टमेंट शेयर में लगा देता है, लेकिन अगर इक्विटी का फंड है तो शेयर में लगा दें। लेकिन जब इन्वेस्टर उसका माल जब चाहिए तब उठा सकता है, तो इस वक्त उनका माल शेयर में लगा हुआ है, तो मैनेजर कहाँ से उसको देता है? देखिए, उसका तरीका ये होता है कि जब आप एक इक्विटी फंड, ओपन एंडेड इक्विटी फंड में जब आप कैश की रिक्वेस्ट डालते हैं ना कि मुझे जाना है, निकलना है, तो म्यूचुअल फंड में कॉन्सेप्ट होता है एनएवी का, यानी आने की कीमत जाने की कीमत, वो रोज की आ रही है शेयर की कीमत की बुनियाद पर। और कुछ सरमाया म्यूचुअल फंड वाले 5% 4% कैश में भी रखते हैं, ताकि ये जो जल्दी में लोग जाना चाहें तो उनको, अगर उनको लगता है कि ज्यादा लोग जाना चाह रहे हैं तो फिर उनको शेयर बेचने पड़ते हैं, सुकूक बेचने पड़ते हैं। लेकिन अगर दो थोड़े से लोग जा रहे हैं जो कि आम हालात में थोड़े से आते हैं थोड़े से जाते हैं, तो वो फिर बराबर होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोग जाना शुरू हो जाए तो फिर उनको अपना सामान बेचना, अपना चीजें बेचनी पड़ती है। इसमें नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो ये एक तिजारत का एक तरीका है कि कुछ लोग जा रहे हैं, जब ज्यादा जा रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर उनको बेचना पड़ता है। अच्छा, इस्लामिक जो रियल एस्टेट फंड हैं, इसके अंदर आप हाउसिंग स्कीमें बना सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, कमर्शियल प्लाजा, ऑफिस बिल्डिंग, इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए आप कंपनियां बना सकते हैं, जगहें। हाउसिंग फाइनेंस की बुनियाद पर आप कर सकते हैं, पोर्टफोलियो की बुनियाद पर आपने घर खरीदे, लोगों को किराए पे दे दिए। एग्रीकल्चर पार्क्स हैं, फील्ड्स हैं, बहुत सारे इसके इसके भी क्या करना चाहिए, इस्तेमाल के तरीके किए जा सकते हैं। अच्छा, अब इसी का सिर्फ तीसरा हिस्सा मैं बहुत मुख्तसर से बात करूंगा कि असल में जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो एक तीसरा हिस्सा होता है सुकूक का। अब सुकूक हमारा आज का मौजू नहीं है, लेकिन जब आप रियल एस्टेट में, सॉरी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो म्यूचुअल फंड में एक तो स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है, और सुकूक में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। डिपेंड करता है ना आपने कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया। देखें, जो इन्वेस्टर होता है हम उसको कहते हैं, आप अपने रिस्क के प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप यंग हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप इक्विटी फंड में जाएं। आप एक ओल्ड एज है, पेंशन टाइप का है, आप कहते हैं यार बस मुझे एक लगी बंदी आमदनी मिल जाए, तो आप सुकूक फंड में जाएं। आप इस्लामिक कैश फंड में जाएं, जहाँ पे लो रिस्क हो। तो इसमें ना म्यूचुअल फंड में क्लासिफिकेशन होती है, हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क। तो इस तरह इन्वेस्टर को एडवाइस किया जाता है कि आप अपने सरमायाकारी की जो स्ट्रेटेजी है वो इस हिसाब से बनाएं, ताकि अगर हाई रिस्क में चले गए और स्टॉक मार्केट में 30% नुकसान हो गया, तो आपका 30% सरमाया उड़ जाएगा। क्या आप इसको बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं कर सकते, तो फिर आप कम जाएं। तो इस तरह से, और इसी तरह सुकूक के अंदर भी जा सकते हैं। सुकूक में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, सुकूक की, कि सुकूक क्या होता है। मोहतरम, अगर म्यूचुअल फंड के अंदर हाई रिस्क होता है, तो जी। लोग अपने 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 शेयर में इन्वेस्ट करने के बजाय म्यूचुअल फंड में क्यों जाएगा? असल में देखें, म्यूचुअल फंड में दो बातें हैं। एक तो, अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर हाई रिस्क भी है, लो रिस्क भी है ना। अगर आप इक्विटी में जाते हैं, यानी आप चाहते हैं मैं हाई रिस्क फंड यानी इक्विटी में जाऊं। अब आप अभी यंग हैं, आपने कहा यार मेरे पास अभी मैं थोड़ा सा पैसा रिस्क ले सकता हूँ और मुझे रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है उसमें, तो मैंने अपने पास, मेरे पास 50 लाख रुपए में 10 लाख रुपए डाले। लेकिन
क्या आपको इक्विटी मार्केट की समझ है? क्या आपको हर रोज बैठ के स्क्रीनिंग कर सकते हैं? जितना टाइम है आपके पास, अगर है तो फिर आप खुद चले जाएं। अब इतना टाइम अगर नहीं है मेरे पास, मैं तो अपनी जॉब करूं या अपना पढ़ाऊं या अपना काम करूं, या ये चक्कर रोज सुबह बैठ के सुबह शाम 4-4 घंटे बैठ के देखूं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए तो ये आप फिर म्यूचुअल फंड के उन एक्सपर्टीज जो लोग होते हैं ना, उनके हवाले करते हैं, भाई तुम जानो, तुम्हारा तो तुम तो 6 घंटे स्टॉक मार्केट को रोज देख रहे हो, खबरें पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, न्यूज देख रहे हो, इधर क्या हुआ उधर क्या हुआ, ऑयल ऊपर क्यों गया नीचे क्यों गया, तो फिर तुम फैसला कर रहे हो। अब मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो कभी हफ्ते महीने में देखूंगा, तो फिर इतनी देर में तो सारी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो कुछ लोगों को हाँ, ये होता है कि अगर आपको पता है यार एक कंपनी है, जैसे पाकिस्तान में माशाल्लाह मीजान बैंक का शेयर है, तो अभी किसी ने तज्जिया किया मीजान बैंक का कि अगर किसी ने एप्पल का शेयर खरीदा होता कुछ सालों पहले और मीजान का शेयर खरीदा होता 10 साल या 15 साल तक, तो उनका तज्जिया ये था कि मीजान बैंक का शेयर का रिटर्न एप्पल के शेयर से भी ज्यादा था। तो लेकिन ये हर दफा तो जरूरी नहीं कि सही हो। आपने एक आध कंपनी का शेयर खरीद ला रख लिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो चलो समझ में आती है कंपनी अच्छी है, आगे काम करती रहेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं कर रहे हैं, तो शायद आपके लिए फिर इस काम के लिए म्यूचुअल फंड, यानी या तो आप अपना कोई मुलाजिम रखें जो फाइनेंस का बंदा हो, उसको दें अच्छी सी तनख्वाह दें, वो रोज बैठ के आपके लिए मैनेज करें। अब ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है, इतने पैसे नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के पास चले जाएं, भाई दे दें उनके पास। तो और फिर वो आपका पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर फर्दर सब इक्विटी फंड्स होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड्स होते हैं, कुछ एनर्जी इक्विटी फंड्स होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इक्विटी फंड्स होते हैं। तो ये जैसे जैसे मार्केटें बड़ी होती है ना, ये उनके अंदर ये कुछ मिक्स फंड्स होते हैं कि 50% इक्विटी 50% कहीं और। तो इस तरह आपके पास एक इन्वेस्टमेंट का एक समझ लें बुके है, एक मुख्तलिफ तरीके कार होते हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब इसी तरह भी एक साथी ने सवाल पूछा उसामा साहब ने कि इक्विटी को कैसे वैल्यू किया जाए, शेयर की कीमत कितनी होनी चाहिए। अब ये पूरी एक साइंस है, इसके मॉडल्स हैं दुनिया में, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अब ये मॉडल तब तक आपने फाइनेंस ना पढ़ी हो और बाकायदा क्लास ना ली हो इसके हवाले से, तो आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। कि आप ये देखते हैं, मतलब मैं आसान जुबान में बताऊं, एक कंपनी का शेयर है, हर महीने हर साल उसमें 10 रुपए आमदनी होती है, तो आप आज इसकी कितनी वैल्यू देंगे कि अगले 10 साल तक उसकी 10 रुपए आमदनी है। तो ये फिर आप एक पूरा कैश फ्लो बनाते हैं, तो ये चीजें एक आम आदमी के लिए मुश्किल होती है, खास तौर पे उन मार्केट्स में जहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी कम हो। तो फिर उनको हम कहते हैं कि भाई बेहतर है आप, जैसे मैं मीजान में बैठा हुआ हूँ, जैसे मैं 22-23 साल से हूँ, मैं स्टॉक मार्केट के जो इस्लामिक इंडेक्स है, मेरी टीम उसको एक्चुअली कंपाइल करती है, 700 शेयर चेक करती है। लेकिन फिर भी अगर मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, मैंने 95% या 90% इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में की हुई है, थोड़ी सी खुद डायरेक्ट की हुई है, इसलिए कि इतना ना समझ है ना टाइम है। सिर्फ मैं मेरे पास, क्योंकि मैं मीजान का मुलाजिम हूँ, तो मीजान के शेयर्स मौजूद हैं, वो हमें ओवर द टाइम मिलते गए, हमने जमा करके रख लिए, तो वो तो चलो खुद ब खुद आ गए। लेकिन इतनी रोज की बुनियाद पर आप अपनी जॉब करें या ऐप पे बैठ के देखते रहें कि शेयर ऊपर गया नीचे गया, अच्छा फिर टेंशन अलग होती है इससे। 2 रुपए ऊपर गया तो टेंशन, 2 रुपए नीचे गया तो टेंशन, मतलब एक आज की जिंदगी भी मुश्किल में आ जाती है। तो हम लोगों को इन्वेस्ट ये करते हैं कि भाई जिसका कहते हैं ना ना, दुनिया में एक्सपर्टीज का स्पेशलाइजेशन पता है, लेट द स्पेशलिस्ट डू देयर जॉब। थोड़ा बहुत शौक है आप कर लें समझ लें, बट प्रोबेबली आप या तो फिर आप अपने सारे काम छोड़ के इसकी तरबियत लें, फिर आप कर सकते मोहतरम, हमारा यहाँ मगरिब का अजान हो रहा है, तो अगर আমরা ইনশাআল্লাহ মোহতারামের কাছ থেকে সময় নিয়ে মাগরিবের নামাজে বিরতিতে যাব इंशाल्लाह, এবং 7:05 থেকে আমরা আবার শুরু हैं। করব। अच्छा, अगर मोहतरम, जी जी, हमारे यहाँ मगरिब का अजान हो गया,
तो ओके हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ। और सही सुकूक और सिक्योरिटाइजेशन उसका बहस और मुबाहसा हमने आ, आपके यहाँ कितना बज रहा है अभी? यहाँ पे 5:45 बज रहे हैं, तो मेरी भी यहाँ असर का टाइम हो गया है। तो ओके। अगर ये भी हो सकता है कि अगर हमारा ये टॉपिक पे गुफ्तगू कुछ अगर कुछ सवाल जवाब बाकी है तो हम बात कर सकते हैं, वरना हम चाहें तो इसको आज यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। और मैं नमाज के बाद 15 मिनट में मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ, जैसे भी आप लोग मुनासिब। हमारे यहाँ हम तो ये सेशन के लिए हमारा वक्त डेडिकेटेड कर दिया। अगर आपके पास वक्त है तो नमाज के बाद अगर आपने ज्वाइन किया तो यह हमारे लिए बहुत जी जी, मैं ऐसा करता खुश हूँ, होगा 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और फिर मैं सेशन को नमाज के बाद आके कंक्लूड कर दूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलिए, इंशाल्लाह। बस हम शुक्रिया यहीं पे इसको शुक्रिया। होल्ड कर শুক্রিয়া জাযাকুমুল্লাহ। दें। আমরা ইনশাল্লাহ সকলে 7টার দিকে ইনশাল্লাহ চলে আসবো। 7টা থেকে আমরা ইনশাল্লাহ আবার আমাদের সেশন ইনশাল্লাহ শুরু করে দিব।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ओके, शुक्रिया मोहतरम। जी, अब इसके हवाले से अगर आप कोई सवालात हैं तो हम वो बात कर लेते हैं, ताकि फिर हम उसको यहाँ चैट बॉक्स में कुछ सवाल आया, अगर आप नजर डालें तो देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, म्यूचुअल फंड इक्विटी में किस तरह सरमायाकारी करते हैं। तो जैसे कि एक आम इंडिविजुअल इंसान सरमायाकारी करता है स्टॉक मार्केट में, इसी तरह म्यूचुअल फंड्स भी, उनके पास एक कॉर्पोरेट अकाउंट होता है, वो कॉर्पोरेट स्टॉक मार्केट अकाउंट होता है, वो उसके थ्रू स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसी तरह उनके पास, अगर सुकूक की बात करें, तो वो सुकूक के अंदर वो अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लिस्टेड सुकूक होते हैं वो स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो प्राइवेट प्लेस सुकूक होते हैं वो फिर वो बैंकों के साथ राब्ते में रहते हैं, और जैसे जैसे उनको एक अच्छा सुकूक नजर आता है अपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के हिसाब से, वो उसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। तो जो, यानी ऑपरेशनल मैकेनिज्म है वो तो सिमिलर ही होगा इक्विटी में खरीदने का, इंडिविजुअल खरीदे या म्यूचुअल फंड खरीदे। अगर उनका, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ज्यादा तादाद में शेयर खरीदते हैं तो उनको डिस्काउंट अच्छे मिल जाते होंगे, ब्रोकरेज कमीशन वगैरह उनको कम देना पड़ता होगा। गोल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, क्या है? जिस तरह देखें, गोल्ड ईटीएफ क्या हो सकता, ईटीएफ क्या होते हैं? ईटीएफ भी एक तरह का, समझ लें, एक क्लोज एंडेड फंड टाइप का होता है, जिसके अंदर ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी अगर आप वैसे एक सरमायाकारी करते हैं तो एक वक्त में एक शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन ईटीएफ में क्या होता है, नॉर्मली ईटीएफ में एक बास्केट ऑफ शेयर्स हो जाती है। यानी एक, फॉर एग्जांपल, मीजान ने एक ईटीएफ लॉन्च किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान मीजान मीजान पाकिस्तान ईटीएफ कहलाता है। उसमें एक वक्त में आप जब एक ईटीएफ का शेयर खरीदते हैं तो आपकी सरमायाकारी 10 शेयर्स में हो जाती है। तो आप एक वक्त 10 शेयरों में सरमायाकारी कर सकते हैं। और वो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उसमें उसमें तरीकाकार ये होता है कि जब आप उसमें सरमायाकारी करते हैं, तो जैसे आज अगर आपने सुबह पैसे डाले, तो जब आज शाम में बाजार क्लोज होगा, जब मार्केट क्लोज होगी, तो उस वक्त जो कीमत निकलेगी, एनएवी जो निकलेगी, उस पे आपकी सरमायाकारी इस बाजार में की जाएगी। ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ में आप रियल टाइम सरमायाकारी कर सकते हैं। जो ईटीएफ ड्यूरिंग द डे, अगर स्टॉक में या गोल्ड का है तो गोल्ड की कीमत ऊपर या नीचे हो रही है, तो आप उस वक्त उसके अंदर जैसे शेयर में सरमायाकारी कर सकते हैं, इसी तरह ईटीएफ में सरमायाकारी कर सकते हैं। ये समझ लें कि एडवांस एडवांस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है, या एडवांस टाइप ऑफ इक्विटी है, जो फिर जो लोग स्पेशलाइज कर रहे होते हैं उनको फिर वो ईटीएफ वगैरह की ज्यादा, वो रियल टाइम में ट्रेड करके एग्जिट या एंट्री कर सकते हैं। इक्विटी वैल्यूएशन का तो मैंने बताया ना कि बड़े मॉडल्स हैं। कैपिटल, आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो कैपिटल डिस्काउंट मॉडल है, कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल है, इसी तरह डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। फिर प्राइस अर्निंग रेशो के हिसाब से देखा जाता है कि एक आदमी शेयर की प्राइस कितनी है और उसकी अर्निंग कितनी है। तो इस तरह से मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं जो इक्विटी में खरीदारी के लिए एक आम बाजार में इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल ये कि अगर डाइवर्सिफिकेशन, मुख्तलिफ सरमाकारी से खतरा कम होता है, तो फिर सेक्टर फंड जैसे एफ, देखें, कुछ लोगों का ना एक फोकस होता है कि हमें तो सिर्फ टेक्नोलॉजी में जाना है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी में एक कंपनी की 10 कंपनियों में शेयर खरीद लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के अंदर रहते हुए डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है। अगेन, बहुत सारे लोगों को होता है कि हमें ग्रीन फंड में करना है, हमें सस्टेनेबल करना है, ग्रीन शेयर्स में करना है, तो फिर वो ग्रीन कंपनियां होंगी उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसीलिए सेक्टोरियल फंड्स भी, देखें, जैसे जैसे बाजार एडवांस होता जाता है ना, हर तरह के लोगों की जरूरत, यानी हर तरह के लोगों की जरूरियात सामने आती है। तो कुछ लोगों को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, किसी को टेक्नोलॉजी पसंद है, किसी को ऑयल सेक्टर पसंद है, किसी को एनर्जी सेक्टर पसंद है, तो फिर लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ये सरमायाकारी के फंड बनाते जाते हैं।
ये क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि ओपन एंड फंड की मुख्तलिफ इकसाम हैं। तो आज मेरे पास पूरा मतलब नहीं। जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, सेक्टर। हम ये भी जानते हैं कि लोग वक्त या मालूमात की कमी की वजह से म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी करें। मेरे सवाल, अगर कोई शख्स सेक्टरल फंड में क्यों सरमाया करेगी जब उनमें खतरा नहीं नहीं। देखें, असल में बात यह है कि खतरा नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस है कि मैं एक सेक्टर में सरमायाकारी करना चाहता हूँ, और ये नहीं चाहता कि मैं खुद सरमायाकारी करूँ। कि मुझे उस सेक्टर की इतनी तो समझ है, लेकिन मुझे उसके अंदर की समझ है इतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर वो म्यूचुअल फंड जो उस सेक्टर पे फोकस है उसमें चला जाता है। तो वही बात है कि लोगों की प्रेफरेंस है। कुछ फॉर एग्जाम्पल आप सुकूक में भी आप देखें ना, तो एक है सॉवरेन सुकूक, मैं सिर्फ हुकूमत की सुकूक में सरमायाकारी करूंगा। एक है मैं प्राइवेट सेक्टर के सुकूक में सरमायाकारी करूँ। एक है मैं किसी भी किस्म के सुकूक में सरमायाकारी करूँ। एक है मैं सिर्फ ग्रीन सुकूक में सरमायाकारी करूंगा। अब आप देखें उसमें भी सेक्टर बन गए चार। तो लोगों की अपनी, कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है, कुछ कंपनियां होती हैं जो जिनकी एक अपना होता है जी हमें तो सिर्फ ग्रीन प्रमोट करना है तो हम सिर्फ ग्रीन में करेंगे। कुछ होते हैं कि हमें बहुत लो रिस्क लेना है तो इसलिए हम सिर्फ गवर्नमेंट में करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि यार हमें रिस्क थोड़ा सा ले लेंगे क्योंकि रिटर्न अच्छा है तो हम प्राइवेट सेक्टर में करेंगे। तो ये एक तरह का एक सिस्टम है जो जो होता है। ये चार मेरे ख्याल में सवाल, पांच सवाल थे, तो हमने ऊपर डिस्कस करनी है। अ, तो मैं ख्याल में अभी मुझे लग रहा है कि ऑडियंस भी हमारी कुछ कम हो गई है। मोहतरम, आपने मगरिब के पहले सिक्योरिटाइजेशन इन सुकूक इस टॉपिक में बात करना देखिए, चाहते हैं। सिक्योरिटाइजेशन को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सिक्योरिटाइजेशन क्या होती है? सिक्योरिटाइजेशन ये होती है कि किसी भी एक नॉन ट्रेडेबल एसेट को सिक्योरिटीज में तोड़ना। कन्वेंशनल जुबान में यानी कन्वेंशनल दुनिया में तो नॉन सिक्योरिटाइजेशन क्या होती है? आप एक रिसीवेबल है, एक आपका कर्जे का पोर्टफोलियो है, उसको आपने पैकेज किया, एक सिक्योरिटी बनाई और बाजार में भेज दिया। जैसे कि एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज होती हैं, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। लेकिन इस्लामिक फाइनेंस में जब हम सिक्योरिटाइजेशन की बात करते हैं तो उसकी एक मिसाल, आसान सी मिसाल है कि एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, उस पर 10 अरब 100 अरब रुपए का बना है। अब हुकूमत की वो मलकियत है। अब हुकूमत के लिए तो ये फिक्स एसेट है, इलिक्विड एसेट है। हुकूमत चाहती है कि भाई इसका जो पैसा मैंने डाला है वो मुझे पास निकला है, मैं दूसरा एयरपोर्ट बनाऊं, तो उसने इसके शेयर यानी सुकूक सर्टिफिकेट इशू कर दिए, और जो सुकूक इन्वेस्टर्स हैं उनको एयरपोर्ट के यूनिट भेज दिए, टोकन भेज दिए। अब जो अब वो जो सर्टिफिकेट है वो ट्रेडेबल है बाजार में। तो आपने क्या किया, एक इलिक्विड एसेट को कन्वर्ट कर दिया एक ट्रेडेबल सिक्योरिटी में। और इस्लामिक सिक्योरिटाइजेशन का मतलब हुआ कि आपने एक इलिक्विड एसेट जो एक शरिया कंप्लाइंट एसेट था, एक रियल एसेट था या एक रियल बिजनेस था, उसका शेयर आपने उसको कन्वर्ट किया एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिसको हम सुकूक कहते हैं फॉर एग्जांपल, और वो अब ट्रेडेबल है। तो अब आदमी उसमें सरमायाकारी कर भी सकता है, उसमें से निकल भी सकता है, उसको होल्ड भी कर सकता है। तो ये एक आसान जुबान में शरिया कंप्लाइंट सिक्योरिटाइजेशन है जो सुकूक के थ्रू इस्लामिक बैंक में या इस्लामिक मालियाती इदारे या इस्लामिक जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें वो करते हैं या उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक तरीका होता है बाजार में यानी नॉन लिक्विड एसेट्स को लिक्विड या ट्रेडेबल एसेट्स में कन्वर्ट करने की एक टेक्निक है फाइनेंस की। इसको सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। कन्वेंशनली भी होती है, इस्लामिकली भी होती है। हमारे पास इस्लामिक की एग्जांपल इसमें सुकूक के तौर पे शामिल है। If one Islamic mutual fund company cannot give us their balance sheet to see the taxable asset, देखें आमतौर पे हम ये कहते हैं क्योंकि देखें म्यूचुअल फंड में जो भी आपने सरमाया दिया है ना, वो अपनी तिजारत या इन्वेस्टमेंट की नीयत से दी। तो देखा जाए तो उसकी जो भी एनएवी है वो उसके ऊपर जकात देनी चाहिए। आसान जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू है। क्यों? क्योंकि आप उसने अगर शेयर भी खरीदे, उसने सुकूक भी खरीदे, तो वो तो इन्वेस्टमेंट है एक। आप जैसे आपकी सेविंग अकाउंट में इस्लामिक बैंकों में इन्वेस्टमेंट है, चाहे इस्लामिक बैंकों ने पीछे आगे कुछ गाड़ियां खरीदी हैं, कोई तिजारत खरीदा है, कोई जमीन खरीदी है, लेकिन ओवरऑल उसका एंड मकसद उसको लेके बैठना नहीं है। इवन जो गाड़ी खरीदी है, इजारा पे दिए, 5 साल बाद उसको बेचने का पहले से नियत मौजूद है। तो इसी तरह
हम एक जो 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 व्यू है हमारे यहाँ ज्यादातर उलमा का कि म्यूचुअल फंड में जो आपने सरमायाकारी की है, जो भी उसकी नेट एसेट वैल्यू है, वो सारी ज़कातेबल। ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट। तो कोई और सवाल है तो फिर बात कर लेते हैं इंशाल्लाह। और एक्चुअल चैट बॉक्स में नया एक्चुअल आया। हाँ, ये मैंने देख लिया, ज़कात के ऊपर था। व्हाट आर द चैलेंजेस टू मैनेज इस्लामिक म्यूचुअल फंड? देखिए, चैलेंजेस दो तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपके पास जो शरिया कंप्लायंट इक्विटीज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं आपके बाजार, ये एक चैलेंज है। आपके पास सुकूक ही नहीं है मार्केट में, तो क्या करेंगे? आपके पास लोग आ रहे हैं लेकिन आप सरमाया कहाँ डालेंगे? तो या स्टॉक मार्केट या सुकूक मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, सुकूक इशू हो रहे हैं फिर बंद हो गए होना। तो ये चैलेंजेस आ सकते हैं। शरिया कंप्लाइंस के हवाले से लोगों के अवेयरनेस नहीं है, इसके हवाले से ये चैलेंज आ सकता है आपको। लोग अगर इंटरेस्ट रेट या फाइनेंसिंग रेट या बैंक रेट अचानक कम हो गए, तो लोग फिर म्यूचुअल फंड से निकाल के पैसा डायरेक्ट रियल एस्टेट में ले जाते हैं। ये चैलेंज आ सकता है। अभी पाकिस्तान में हमें हुआ, अभी हमारा जो रेट था वो 20% से गिर के 10-11% आ गया है। तो जो लोग 20% रेंट मिल रहा था, 16% रेंट मिल रहा था, अब उनको 10% मिल रहा है। तो उन्होंने कहा यार ये कितना कम क्यों हो गया, वो पैसे निकाल के दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं। तो अचानक से रिडम्पशन आ सकती है। हमारे यहाँ भी हुआ, कुछ फंडों ने अपने सुकूक बेचे। अब जल्दी में सुकूक बेचेंगे तो ऑब्वियसली लॉस पे बिकते हैं, कम प्रॉफिट पे बिकते हैं, तो उससे लॉस भी हुआ लोगों को थोड़ा बहुत। तो असल में कैपिटल मार्केट अगर बहुत वॉलेटाइल है तो म्यूचुअल फंड तो उसी में काम कर रहा है। इसी तरह बैंकिंग मार्केट में तो आपको म्यूचुअल फंड एक कैपिटल मार्केट का ही पुर्जा है। अचानक कैपिटल मार्केट क्रैश कर जाए, जैसे कुछ सालों पहले पाकिस्तान में हुआ, कुछ कि एकदम मार्केट नीचे आ गई, तो जो इक्विटी फंड थे वो सारे बेचारे लॉस में चले गए। अब वो वहां से निकल के भागे, लेकिन लॉस तो हो चुका। तो ये मार्केट के जो रेट्स हैं उससे बिहेव करती है। अभी पाकिस्तान में क्या हुआ, क्योंकि रेट कम हो गए तो लोग सारे पैसे निकाल निकाल के इक्विटी में डालना शुरू हो गए कि यार अब तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, सुकूक मार्केट नीचे चली गई, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। क्योंकि अब सुकूक में रिटर्न 10% हो गया, स्टॉक मार्केट में हो सकता है छक्का लग जाए, 20% मिल जाए। तो ये होता है। और इन्वेस्टेड जो है ना, म्यूचुअल फंड की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कई दफा प्रॉब्लम भी बन जाती है। अचानक से नहीं भाई, वो तो 5 साल का सुकूक लेके बैठा हुआ है, आप अचानक से निकल के चले गए, तो ये चैलेंज हो जाता है। तो आई थिंक एक आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल हुआ होगा। और आई होप कि इसमें आपको एक म्यूचुअल फंड के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी इंशाल्लाह। So, with this, thank you very much, and I'd like to conclude the session. मीजान बैंक की तरफ से मैं आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग अच्छा इस तरह की सीरीज शुरू की, आप लोग इससे लोगों में अवेयरनेस होगी। आप बाकी अगर आपको फर्दर देखना है तो मीजान बैंक की एक सब्सिडरी है मीजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है और शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड है। यानी सबसे बड़ा भी वही है और सबसे शरिया कंप्लाइंट भी वही है। उसकी आप वेबसाइट पे जाके अलमीजान ग्रुप या अलमीजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की वेबसाइट पे जाके आप मजीद इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे तरफ से, मरकज़ दिरासत इक्तिसाद इस्लामी की तरफ से। और आज के ये सेशन में जो लोग हमारे साथ ज्वाइन हुआ, सबके सबके तरफ से हम आपको बहुत शुक्रगुजार है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिटेड हुआ। और हम आशा रख हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप इंशाल्लाह हमें फ्यूचर में इंशाल्लाह फायदा इंशाल्लाह पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।